Good morning, students. This session for class 12th, and today our topic will be internal resistance of a cell. Then we will study factors affecting on internal resistance. Then how we will measure EMF and terminal potential difference of a cell, and then we will study relation between EMF, potential difference across external resistors, and potential difference across internal resistance. And then we will convert that formula. It means we will obtain certain equation, and then we will study series and parallel combination of cells. Okay, so let's start with internal resistance of a cell. So this is our today first topic, that is internal resistance of a cell. Okay, so this one is internal resistance. So students, the opposition offered by electrolyte of the cell to the flow of electric current through it is called internal resistance of the cell. Let me repeat, the opposition offered by electrolyte of the cell to flow of electric current through it is called internal resistance of the cell. I hope you understand. Students, you know the basic structure of a chemical cell. Suppose this one is a container and it contains some liquid electrolyte, and there are two electrodes. Now when charge flow from one electrode to another electrode inside the liquid or electrolyte, then this electrolyte offers some resistance in path of flow of charge carriers that are ions and electron, and this opposition in motion offered by electrolyte of the cell is known as internal resistance. Okay, I hope you understand what is internal resistance. So let me repeat. When you can see here the basic structure of a cell, it contains some electrolyte and two electrodes. When charge from one electrode move to another electrode inside the electrolyte, then electrolyte opposes the motion of charged particles and electrons. This opposition is a resistance which is known as internal resistance of the cell. Okay, so this is actually internal resistance. Okay, now the symbol which represents the internal resistance is, if this is a cell, then we can draw this type of resistance in a box. Okay, if any resistance shown in a box, then that resistance is considered an internal resistance. Okay, so this resistance is internal resistance. It means this resistance is a resistance offered by electrolyte of that cell. Okay, so the potential according to the Ohm's law within the electrolyte is given by V is equal to small v is equal to current through this and into small r. Okay, so you can write like this. So v is equal to I into small r. Okay, this is the internal potential difference in the electrolyte of the cell. V is equal to, this is small v is equal to I into small r, where small r is resistance offered by the electrolyte. Okay, now we are going to study the factors affecting internal resistance of a cell. So what are the factors which affect the internal resistance of the cell? It means which factors increases and which factor decreases internal resistance of the cell. So the first point is, larger the separation between the electrodes of the cell, more the length of the electrolyte through which current has to flow, and consequently a higher value of internal resistance. Okay, so the meaning of this statement is, if two electrodes within the electrolyte are at larger distance, suppose they are at larger distance, so the charged particle have to travel large distance. So electrolyte offered large resistance. If they are close to each other, then charged particle को थोड़ा ही डिस्टेंस
ट्रेवल करना पड़ेगा, इट मीन्स उस रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रोलाइट का है वो कम हो जाएगा। ओके, तो इट मीन्स कि जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस पे इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का डिपेंड करता है, और ये है कि अगर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस ग्रेटर है तो रेजिस्टेंस भी ग्रेटर होगा, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, क्योंकि अगर डिस्टेंस कम है तो चार्ज पार्टिकल को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाने में कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जिससे वो कम रेजिस्टेंस फील करेंगे। और अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस लार्ज है तो क्या होगा कि उनको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना होगा और वो हाई रेजिस्टेंस फील कर पाएंगे। तो इस केस में आप बोल सकते हैं कि इफ़ देयर इज लार्ज डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स in the electrolyte, then resistance will be high. If distance between two electrodes is less, then resistance will be less. Okay, so I hope you get this point. Now second one is greater the conductivity of electrolyte, lesser is the internal resistance of the cell. Okay, so इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो सेल में, सभी की कंडक्टिविटी अलग अलग होती है। ओके, और आप जानते हैं कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाई रेजिस्टेंस। ओके, तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो कंडक्टिविटी के अपोजिट होता है, मतलब 1 बाई रेसिप्रोकल होता है। तो अगर कंडक्टिविटी है ये तो क्या होगा, जो आपका रेजिस्टेंस है वो लेस होगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट हाईली कंडक्टिव है तो रेजिस्टेंस लो रहेगा। ओके, तो ये पॉइंट है। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब ये भी होता है, अगर नेचर पर डिपेंड करने का मीनिंग यही है कि इलेक्ट्रोलाइट का अगर कंडक्टिविटी हाई है तो रेजिस्टेंस लो होगा, और अगर कंडक्टिविटी लो है तो रेजिस्टेंस हाई होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिपिंग इनसाइड इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो ये बोलता है कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो इलेक्ट्रोड है उसका एरिया अगर ग्रेटर है तो रेजिस्टेंस लेस होता है, क्योंकि अगर एरिया ज़्यादा है तो कोई भी इलेक्ट्रोड लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर पाएगा, कलेक्ट कर पाएगा। अगर लार्ज चार्ज कैरियर को कलेक्ट कर पाता है, इट मीन्स रेजिस्टेंस लो हुआ। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड डिपेंडेंस ऑन एरिया। एंड द फोर्थ पॉइंट अगर हम लोग देखें, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक रिलेशन भी मिलता है हमें। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। ओके, ये इलेक्ट्रोड्स के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रोड किस चीज़ का बना हुआ है, आखिर एनोड और कैथोड किस चीज़ का बना है, तो उसके नेचर पे भी ये इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो हम लोग एक बार फिर से चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं। अगर आप देखें फर्स्ट पॉइंट को, larger the separation between electrodes of the cell, then more length of the electrolyte through which current has to flow, and consequently a higher value of internal resistance। ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ग्रेटर है तो रेजिस्टेंस ग्रेटर होगा, बस इतनी सी बात है। क्योंकि अगर ग्रेटर डिस्टेंस है तो चार्ज कैरियर को इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जिससे वो ज़्यादा पोजीशन महसूस करेंगे। सेकेंड, ग्रेटर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेसर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर कंडक्टिविटी ग्रेटर है तो रेजिस्टेंस लो होगा ही, ये तो हम पहले से ही जानते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। थर्ड, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ओके, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किसी सेल का वो इलेक्ट्रोड के एरिया पे डिपेंड करता है, और अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और एरिया कम है तो रेजिस्टेंस हाई होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोड का एरिया ज़्यादा है तो वो लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को कलेक्ट करेंगे, जिससे कि उसका रेजिस्टेंस कम होगा, कम महसूस करेंगे। ओके, और फोर्थ, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किसी सेल का वो इलेक्ट्रोड्स के नेचर पे भी डिपेंड करता है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यू कैन सी हम लोग किसी सेल के लिए लिख सकते हैं कैपिटल ई, जो कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का, जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो है ई। तो ई की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं वी जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, और प्लस स्मॉल वी लिख सकते हैं क्योंकि ये जो स्मॉल वी है
ये पोटेंशियल डिफरेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस में, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए ये एक सेल है ई जिसका ईएमएफ जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को प्रेजेंट करता है, इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर के रेजिस्टेंस को प्रेजेंट करता है, ठीक है। अब अगर ये सर्किट क्लोज है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाहर लगा हुआ है, हम लोग वायर्स को रेजिस्टेंस लेस मानते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। बट ये जो वायर से कनेक्ट किया गया है इसका रेजिस्टेंस हम लोग नेग्लिजिबल लेते हैं। जब फर्दर स्टडी करेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्लूड करेंगे, हालांकि अभी हम इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इस पूरे सर्किट में सिर्फ दो जगह ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक तो इस वाले रजिस्टर में जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, और दूसरा ये एक्सटर्नल रजिस्टर जो कि किसी डिफरेंट मटेरियल से बना होगा, हाई रेजिस्टेंस जिसका है। अब क्या होगा, जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुई इसके अंदर से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी, और जैसे ही करंट आई फ्लो करेगी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे V इक्वल टू आई आर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, और ये करंट फिर से पास करेगी और यहाँ से आएगी पास करेगी, और यहाँ पे स्मॉल v इक्वल टू आई इंटू आर ड्रॉप हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि इनका इसका वन एंड इसके दूसरे एंड से कनेक्टेड है, और फिर इन दोनों के दूसरे एंड के बीच एक सेल लगा है, इसका मतलब ये सीरीज में कंबाइंड है। तो जब सीरीज में कंबाइन है तो इन दोनों के बीच में करंट क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब इसमें v इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर, और यहाँ पे v इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर लिखेंगे, ओके। तो इस पूरे सर्किट में दो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक तो स्मॉल v है, एक कैपिटल V, और सर्किट के टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को ही ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों का सम E के इक्वल होना चाहिए। तो इसी का यूज़ करके यहाँ पे इक्वेशन लिखा गया है E इज इक्वल टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v, ओके। अब हम लोग V को I इंटू कैपिटल R लिख सकते हैं, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में है, और ये I इंटू स्मॉल r, यहाँ पे स्मॉल r जो रजिस्टर है वो इलेक्ट्रोलाइट का है। नोट दिस पॉइंट, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, और ये I इंटू आर जो हो गया वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ से I को कॉमन ले सकते हैं, तो आप I को कॉमन ले सकते हैं और लिख सकते हैं I इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। हाँ, तो ये हो गया। इसी इक्वेशन को सर्किट इक्वेशन बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन से किसी सर्किट में फ्लो होने वाली मैक्सिमम करंट को कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ देखिए, क्योंकि ई मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द सेल, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया गया जो भी है उसको डिवाइड किया गया। इट मीन्स I इज द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, ओके, एंड दिस रिलेशन इज नोन एज द सर्किट इक्वेशन, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस इक्वेशन का यूज़ करके आप सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको ईएमएफ पता हो और सर्किट का इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता हो, ओके। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। एक बार फिर से चीज़ों को रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट सर्किट है, इस कंप्लीट सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस E होगा जो कि मैक्सिमम होगा। अब इस सर्किट को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें दो रेजिस्टेंस है, एक तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर और दूसरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ पे वायर्स का रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल माना गया है, ओके। तो यहाँ पे अगर देखें तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो स्मॉल v प्लस कैपिटल V होगा, क्योंकि दो जगह ही पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, एक दो ही जगह रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे v इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर, जो कि स्मॉल r इसका रेजिस्टेंस है, और v इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर रेजिस्टेंस है, ओके। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट का जो होगा दैट इज कैपिटल V प्लस स्मॉल v, ये इस सर्किट के ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा, यही डिफिनीशन है। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू V प्लस स्मॉल v लिख सकते हैं। अगले स्टेप में V इज इक्वल टू आई इंटू आर, क्योंकि यहाँ पे V जो है वो कैपिटल R में पोटेंशियल ड्रॉप है, स्मॉल v जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर का है, आई इंटू स्मॉल आर। अब यहाँ से I को कॉमन लिया गया और I की वैल्यू निकाल दिया गया। दिस इक्वेशन इज नोन एज सर्किट इक्वेशन, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, and by using this formula you can calculate the maximum current flowing through this circuit, okay. I hope you understand. Now we are going to change the same equation in different form. तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इन टर्म्स ऑफ EV एंड कैपिटल R निकालना है हमको। तो हम चाहते हैं कि इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस
फाइंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, तो इसके लिए फिर से सेम फार्मूले का यूज़ करते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, इतना तो हमें पहले से ही पता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सिर्फ v की वैल्यू यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा एम स्मॉल r की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे i इंटू कैपिटल R भी लिख सकते हैं, बट उसे बाद में यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी। इस v को इस साइड ले आया गया है। ठीक है, इस v को इधर ले आते हैं, तो आप लिख सकते हैं आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी। ठीक है, अब यहाँ से दोनों साइड में बस आर एच एस और एल एच एस दोनों तरफ कैपिटल वी से डिवाइड करते हैं, या फिर आप आई कैपिटल आर और वी से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा इसलिए करने क्योंकि हमें रिलेशन इस फॉर्म में चाहिए सिर्फ। ओके, तो यहाँ पे आपने आई आर और यहाँ से कैपिटल वी से डिवाइड कर दिया। यहाँ से ये आई क्योंकि सेम है कैंसिल हो जाएगी, तो आर इज इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ देखिए अगर इस वी को, ये जो वी है इसको ई में डिवाइड करें तो ई अपॉन वी माइनस 1 इन ब्रैकेट हो जाएगा और कैपिटल आर इधर। ओके, सो स्मॉल आर इज इक्वल टू ई अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर आ जाएगा। सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है। ये इक्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन की हेल्प से किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, तो एक बार फिर से चेक कर लीजिए, आपको ये इक्वेशन याद है। ठीक है, यहाँ से v की वैल्यू i इंटू स्मॉल आर लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिया गया। इसके बाद आपने क्या किया, i इज इक्वल टू आर, आई इंटू स्मॉल आर की वैल्यू निकाल दिया, ये ई माइनस वी हो गया। ठीक है, अब इस i इंटू स्मॉल आर में भी कैपिटल v से यहाँ डिवाइड किया गया है, ये पॉइंट नोट करना है क्योंकि हमें रिलेशन उसी टाइप का निकालना है, और यहाँ भी v से डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब इस v की वैल्यू i इंटू कैपिटल आर लिख सकते हैं, इसको v रहने देते हैं, तो यहाँ पे i इंटू आर लिख दिया गया। ये i से i कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू यहाँ पे e बाई वी लिख सकते हैं, इसको माइनस 1 लिख सकते हैं। ओके, और अब इस r को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाता है। ओके, ये इक्वेशन आपको मिल जाता है, r इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस माइनस 1 इंटू आर। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशन की हेल्प से आप इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सर्किट का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका यूज़ करिए। क्वेश्चन जो बुक में दिए गए हैं उसको इसकी हेल्प से सॉल्व करिए। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय वोल्ट मीटर मेथड। तो कैसे किसी वोल्ट मीटर का यूज़ करके आप किसी सेल का ईएमएफ और उसके बाद उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो हमको पहले ईएमएफ निकालना होगा। तो पहले हम लोग ईएमएफ निकालने सीख रहे हैं कि वोल्ट मीटर की हेल्प से ईएमएफ कैसे निकालते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि वोल्ट मीटर क्या होता है। तो स्टूडेंट, वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे किसी सर्किट के किसी भी पार्ट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस सर्किट को, यहाँ पे आप देखिए इस सर्किट में एक वोल्ट मीटर को एक सेल के क्रॉस कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, सेल के क्रॉस कनेक्ट कर दिया है, इसका मतलब इसको सेल के दोनों इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया गया है, और ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये सेल के अंदर है। ठीक है, तो एक्चुअल में इसको कैसे कनेक्ट किया गया होगा, अगर आप देखें तो ये सेल है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये अंदर है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड हैं, तो वोल्ट मीटर को यहाँ पे कनेक्ट किया गया होगा। आप समझ रहे हैं, ये वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया गया है यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रोलाइट अंदर है, ये सेल के अंदर है, और इस नेगेटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है। इन दोनों से सेल को अगर आप देखें, ये नेगेटिव से सेल को कनेक्ट किया गया है, ये पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। ये जो है ये एक्चुअल में यहाँ पे ये सेल इलेक्ट्रोड के अंदर, सेल के अंदर एक लिक्विड है, एक्चुअल में इससे ये वोल्ट मीटर कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से इसको कनेक्ट किया गया है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी यूज़ किया गया है इस सर्किट में, बट इस सर्किट की खास बात ये कि यहाँ पे करंट नहीं फ्लो करेगी, क्योंकि ये ज़ीरो, यहाँ पे देखिए ये ओपन सर्किट है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो कनेक्ट नहीं है तो इसमें कोई करंट पास नहीं करेगी, और करंट पास नहीं करेगी तो इस सेल के अक्रॉस में ये जो इलेक्ट्रोड है इसके अक्रॉस का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इस वोल्ट मीटर द्वारा मेजर कर लिया जाएगा। ओके,
So these voltmeter measures the potential difference across the cell when there is no current in the circuit. It means for open circuit, and this is known as EMF of the cell. हाँ, अभी आपको EMF of the cell, EMF की डिफिनीशन याद आ गई होगी. So EMF is the potential difference when there is no current flowing through the circuit or when circuit is open. Okay, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सर्किट ओपन है और इस सर्किट में कोई भी करंट पास नहीं कर रही है. उस केस में इस सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जा रहा है बाय यूजिंग दिस वोल्टमीटर इज इक्वल टू द EMF ई. इसका मतलब ये V E के इक्वल है. ठीक है जी, हाँ, ये V E के इक्वल है. ओके, तो इट मीन्स आपको इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया है. तो आपको अगर एक्सपेरिमेंट में EMF मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, जो सेल है उसके दोनों इलेक्ट्रोड पे वोल्टमीटर के दो टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के वायर को कनेक्ट कर देंगे. बट ध्यान रखेंगे कि सर्किट इनकम्प्लीट हो, मतलब उस सर्किट में कोई भी करंट पास नहीं कर रहा हो. उस कंडीशन में इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर मेजर करेगा वो उस सेल का EMF होगा, या उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ओके, और वही उतना ही वो EMF उस वर्क के इक्वल होता है जितना वर्क यूनिट चार्ज को उस पूरी सर्किट इंक्लूडिंग सेल में कंप्लीट रोटेट या फिर कंप्लीट ट्रेवल कराने के लिए रिक्वायर्ड होता है. समझ गए? तो आई होप आपको ये बात समझ में आई है कि EMF क्या होता है. ठीक है, और कैसे इसको वोल्टमीटर की हेल्प से मेजर करेंगे. अब हमारा नेक्स्ट आता है कि कैसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे. ओके, तो आप अब सेम केस में क्या करेंगे, वोल्टमीटर को पहले बाहर कर लेते हैं और अब इस सर्किट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे. इनको क्लोज कर देते हैं. ठीक है, इसको आपस में कनेक्ट कर दिया गया है. ये सर्किट हो गई क्लोज. इन दोनों पॉइंट्स को आपस में एक वायर की हेल्प से कनेक्ट कर दिया गया है. यहाँ पे ये हो गई सर्किट कंप्लीट. ठीक है, अब क्या होगा, ये सर्किट कंप्लीट हो गई. अब इस सर्किट में करंट आपको दिख रहा है, आई करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गई. आई करंट फ्लो करना जैसे ही स्टार्ट होगा, इसके क्रॉस कैपिटल V और इसके क्रॉस स्मॉल v डेवलप हो जाएगा. ठीक है, तो स्मॉल v डेवलप हो जाएगा. तो ये जो वोल्टमीटर होगा, अब ये जो मेजर करता है रीडिंग, ये एक्चुअल में ये कैपिटल V मेजर करता है और ये दोनों ही इक्वल हो जाते हैं. मतलब ये जो कैपिटल V मेजर कर रहा है, ये एक्चुअल में ये इस वाले रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है. मतलब इसके क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही इसकी रीडिंग आ जाती है, उसी को कैपिटल V बोलते हैं हम. ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही होगी. जैसे ही सर्किट में करंट पास करने लग गई, अब सर्किट में करंट पास करने लगी तो इस कुछ पार्ट पोटेंशियल का यहाँ ड्रॉप होगा और कुछ यहाँ ड्रॉप होगा. पिछली बार देखिए, न तो कोई पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हुआ है न तो यहाँ ड्रॉप हुआ है. आपने सिर्फ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया हुआ है, लेकिन सर्किट तो डिसकनेक्ट है. जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुई, कुछ इसका पार्ट यहाँ और कुछ यहाँ ड्रॉप हो गया. तो ये जो वोल्टमीटर है, ये इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है, वही रीडिंग बता रहा है. तो इस केस में जो V आता है ये E से थोड़ा सा कम होता है. ठीक है, इसकी वैल्यू E से कम होती है और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है सर्किट का. ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया कि एक्सटर्नल या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करेंगे. तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए करते हैं कि सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं और सर्किट में करंट फ्लो होने देते हैं. जब सर्किट में कंप्लीट करंट फ्लो होने लगती है तो क्या करते हैं, वोल्टमीटर को कनेक्ट कर देते हैं सर्किट में और पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग नोट कर लेते हैं. अब आप देखेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इस वाली केस की कंपैरिजन में लेस होगा, कम होगा. और जब लेस या कम होगा तो वही वैल्यू कैपिटल V की बन जाती है. ठीक है, और अब आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल R की वैल्यू पता हो तो आप इस फार्मूले का यूज़ करके R इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल V माइनस 1 का यूज करके आप इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल का कैलकुलेट कर सकते हैं. समझ में आ रही है बात? तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, आप इनको चेक करिए कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे EMF और कैसे एक्सटर्नल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जा सकता है. फिर उसकी हेल्प से आप इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का
कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो टेक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच इज़ गिवन इन योर बुक and try to solve these questions. Keep practicing. You will, I hope you don't have any confusion regarding these points. Okay, तो अब यहाँ पे इसके बारे में और देख लेते हैं क्या है। ये देखिए ओपन सर्किट है, नो करंट इज ड्रॉन, देन मेजर्ड ईएमएफ मेजर हो रहा है यहाँ पे। यू कैन सी क्लोज सर्किट, करंट इज ड्रॉन, इसमें करंट ड्रॉ हो रही है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो रहा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, क्या ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से लेस होता है? ये क्वेश्चन है, क्या ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से लेस होता है? अगर नहीं तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ग्रेटर होता है? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन। ठीक है, खुद से कोशिश करिए, चेक करिए कौन से डे हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसको नोट करिए और कमेंट में लिखिए। ओके, आई होप यू नो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द सेल्स इन सीरीज कम्बिनेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको पता है सेल क्या होता है, एक बार फिर से सेल को डिफाइन कर देते हैं। सेल, अ केमिकल सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, अब इसी टाइप के सेल को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं सीरीज में ढेर सारे सेल को एक साथ, तो इस पूरे कम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं। ओके, तो ये कम्बिनेशन एक बैटरी बनता है। अब इस सेल को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो पहले सीरीज कम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 सेल, 1 2 3। ओके, 3 सेल हैं आपके पास, इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। कैसे? देखिए, पहले वाले का पॉजिटिव टर्मिनल जो है, अगर उसको देखें, अगर यहाँ से पॉइंट हम ब्रेक करें तो फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव से, फिर दूसरे का नेगेटिव टर्मिनल थर्ड वाले के पॉजिटिव से, फिर थर्ड वाले का नेगेटिव टर्मिनल फर्स्ट वाले के पॉजिटिव से। इसका मतलब एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव अल्टरनेटिवली कनेक्ट करते चले जाना है। और इस टाइप के कम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कम्बिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट सेल। इक्विवेलेंट क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं इन सभी सेल के ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। ओके, तो इसका मतलब कि ये सभी सेल एक जैसे हैं, ये इक्विवेलेंट है। बट हो सकता है कि ये सभी सेल इक्विवेलेंट नहीं होते, मतलब इनका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम नहीं होता, तब भी इनको सीरीज में कम्बिनेशन बनाते तो क्या होता वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सीरीज कम्बिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट 3 सेल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सर्किट देख लिए, ये सर्किट है। ठीक है, ये सर्किट अरेंजमेंट है सीरीज कम्बिनेशन ऑफ 3 इक्विवेलेंट सेल के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करना है, इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर की हेल्प से। जैसे इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट होगी, आपको देख पा रहे हैं, क्योंकि ये सभी रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं ये सीरीज में कंबाइन है, तो इन सभी में सेम करंट पास करती है। जी हाँ, इन सभी में सेम करंट पास करती है क्योंकि ये सीरीज में है। ओके, तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखते हैं, द ईएमएफ ऑफ बैटरी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल ईएमएफ्स। ओके, तो इस बैटरी का टोटल ईएमएफ कितना होगा, सभी को इंडिविजुअली ऐड कर दें तो निकल जाएगा, मतलब कैपिटल ई प्लस कैपिटल ई प्लस कैपिटल ई मीन्स 3 कैपिटल ई हो जाएगा इसका टोटल ईएमएफ। अगर n सेल जुड़े होते तो n इंटू कैपिटल ई हो जाता। ठीक है, तो अगर n नंबर ऑफ सेल हैं तो n ही होगा, 3 सेल है तो n इज इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद द करंट इन ईच सेल इज द सेम एज इंडिविजुअल विद द करंट इन द इंटायर अरेंजमेंट। जी हाँ, क्योंकि ये सभी सीरीज में है तो इन सभी में सेम करंट पास करेगी। ठीक है, तो ये सीरीज कम्बिनेशन की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जिससे आपको पता चलता है कि सभी में सेम करंट पास करती है। क्योंकि ये सभी सीरीज में, तो आपको पता होगा इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। सीरीज कम्बिनेशन का फार्मूला लगाइए, कितना आएगा। हाँ, अगर 3 रेजिस्टेंस है तो ये 3 टाइम्स स्मॉल आर प्लस ये कैपिटल आर, बट अगर n होते तो n टाइम्स स्मॉल आर इंटू प्लस कैपिटल आर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही हैं।
इसका मतलब आप टोटल ईएमएफ निकाल पा रहे हैं, करंट निकाल पा रहे हैं और टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का निकाल पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ईएमएफ ऑफ द सेल एन ही होगा, अगर एन सेल है 3 सेल है तो 3 ही लिखेंगे। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, यहाँ पे 3R लिख सकते हैं, एन इक्वल टू 3। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एन आर प्लस आर। ओके, अब क्या करेंगे, तो इस सर्किट में कितनी करंट पास करेगी, तो हाँ टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यही करंट का फार्मूला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एन की वैल्यू 3 और यहाँ पे एन की वैल्यू 3 रख सकते हैं और आपकी करंट की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या एन आर की वैल्यू कैपिटल आर से लेस है। अगर ऐसा है तो हम लोग इस एन आर को कैपिटल आर की जगह पे कैपिटल आर के कंपेरिजन में क्या करेंगे, सॉरी हाँ, एन आर अगर ग्रेटर है तो इस आर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस आर को अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा और हमें करंट आई इक्वल टू कैपिटल ई बाई आर मिल जाएगी। ये वैल्यू हो सकता है कि एन आर की वैल्यू जो हो वो लेस हो एज़ कम्पेयर टू आर। अगर ऐसा होता है तो एन आर को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं और हमको मिलेगा एन टाइम्स ई अपॉन आर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाली केस है तो हमको सर्किट में बहुत लार्ज एन टाइम्स करंट मिलेगी। ओके, तो हम लोग चाहते हैं कि हम सीरीज़ कम्बिनेशन में अगर हमें लार्ज करंट चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे सेल यूज़ करते हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत लो और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हाई यूज़ करते हैं और हमें उस कंडीशन में एन टाइम्स ई बाई आर करंट मिलती है। अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस हाई और एक्सटर्नल लो कर देते हैं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमें एक सेल से जितनी करंट मिलती उतनी ही एन सेल से भी मिलेगी। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ यहाँ पे एक सेल भी लगाते तब भी आपको आई इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर मिलती। यहाँ कैपिटल आर बहुत लेस है इसलिए उसको नेग्लेक्ट करेंगे और आई इक्वल टू ई बाई आर करंट मिल जाएगी। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।